हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। So today we will continue with the story The Yellow Face, written by Sir Arthur Conan Doyle, and this is part 2 of the video. Part 1 I've already uploaded, and I have made the video into 3 parts. Okay, part 1 I've already uploaded, this is part 2, and part 3 and the final part will be coming very soon. Okay, बिकॉज देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दैट आई डू नॉट वांट टू मिस। बहुत सारे डिटेल्स है, कहानी लंबा है, एंड बहुत सारे डिटेल्स है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत आपकी मदद करेगा। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो को मैं 3 पार्ट में बनाता हूँ ताकि वीडियो छोटा भी रहे और आप लोग जो है बोर फील ना करें, एंड यू कैन वॉच द वीडियो यू नो स्पॉन्टेनियसली। आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो देख पाए और जितनी इन्फॉर्मेशन है यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। तो इन पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी we ended at that point where Effie was coming out of the when Effie just came out of that cottage, and Munro was coming from Munro, her husband was coming from a walk. After taking a walk, suddenly Grant Munro, he sees that his wife was coming out of the cottage, and his wife Effie also saw her husband suddenly and became very nervous and frightened. Okay, now Munro is very angry. Obviously, Grant Munro is very angry on his wife because the previous night also, you see, not the previous night, but few days back, one night, Effie had dressed herself and had gone out and had remained outside for about 20 minutes, right? 20 मिनट तक एफ़ी बाहर थी, कपड़े पहन के रात को, अच्छे ड्रेस पहन कर रात को गई, एंड व्हेन शी रिटर्न बैक होम and Munro asked that where did you go? Effie said that I went to take fresh air. Now this is an illogical statement. Okay, this cannot be believed, and obviously Munro felt right at that time that Effie was lying and was hiding something. Okay, so now this is the situation where Effie and Munro, husband and wife, encounter one another. दोनों का एक दूसरे के साथ आमना सामना होता है. Effie was coming out of the cottage and Munro was coming from his walk after taking his walk, and both meet at that point, okay, near the cottage. So now part 2 of the story, let's continue. So Munro asked her in anger, so this is where you went during the night, you see, the other night. Okay, तो Munro ने कहा तो ये वो जगह है जहाँ तुम उस रात को आई थी, हाँ, चुपचाप. Now he also charged her, told word will not be here, he also charged her, उसने Munro actually उसको blame किया, charge किया that she had visited the cottage the previous night and wanted to know who are these people that you should visit them at such an hour. Munro is asking Effie that the other night when you came to meet these people, I'm sure that you came in this cottage only, तुम इसी cottage में आई थी, तो ये लोग कौन हैं? Who are these people that you should visit them at such a late hour at night? इतने देर रात को तुम ऐसे लोगों से मीट करने आते हो, ये कौन है? Do you know them? Munro was asking Effie, do you know them? Today also again you are coming out of the cottage. Who are these people? Do you know them? Okay, क्या तुम इन लोगों को पहचानती हो? Now look at Effie's answer. Effie denied that she had never come to the cottage before. तो Effie ने deny कर दिया. देखिए, Effie said that no, this is the first time that I am coming out of the cottage. Before earlier I never even entered the cottage. मैं पहले कभी cottage में नहीं आई थी. आज पहली बार मैं cottage के बाहर से निकली हूँ. cottage में आई थी, मैं cottage के बाहर से निकली and you found out. Alright, you found out. But Munro became extremely angry at this reply. Munro became extremely angry and said that she was telling a lie. You're telling a lie, Effie. You came that night also, you came again today, you are coming out of this cottage. But Effie said, no, that night I did not come to this cottage. That night actually, it was really that I had gone out to take some fresh air. I did not come to this cottage. But Munro said, no, you are telling a lie. तुम झूठ बोल रहे हो. तुम उस रात को भी आई थी. Today again you are coming. Today again you came, okay? And your voice is shaking. When you are speaking, your voice is shaking. That means you are telling a lie. जो झूठ बोलेगा उसका जो है गला जो है वो shake करेगा. That person's voice will shake. राइट, तो एफीज वॉइस वॉज शेकिंग वाइल शी वॉज स्पीकिंग. तो एफी का वॉइस जो है वो काँप रहा था जब वो बात कर रही थी. तो मुंड्रो ने पकड़ लिया कि तुम्हारा गला काँप रहा है, योर वॉइस इज शेकिंग, तुम्हारा आवाज़ काँप रहा है, दैट मीन्स यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रही हो.
एंड मुनरो टोल्ड हर, नाउ मुनरो वॉज एक्सट्रीमली एंग्री, वो पूरा आग बबूला हो गया. मुनरो वॉज एक्सट्रीमली एंग्री एंड सेड दैट आई विल एंटर द कॉटेज नाउ एंड इंक्वायर एंड फाइंड आउट द ट्रूथ. मैं अभी इस कॉटेज के अंदर घुसूंगा और यहाँ जो लोग हैं उनसे मैं पूछूंगा और सच्चाई मैं बाहर निकालूंगा. आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ राइट नाउ एंड आई विल एंटर द कॉटेज राइट नाउ. सो मुनरो इज अबाउट टू एंटर द कॉटेज. मुनरो जो है वो कॉटेज में एंटर करने वाला है. वो पूरे गुस्से में है, इज इन एक्सट्रीम एंगर, ही इज फ्यूरियस. ऑलराइट, बट एफी समहाउ स्टॉप्ड हर हस्बैंड मुनरो, ओके, बाय पुलिंग हिज स्लीव बैक. तो एफी ने जैसे तैसे करके मुनरो को, अपने हस्बैंड को रोक लिया. उसका जो है हाथ पकड़ के, अपना हाथ में जो शर्ट का जो स्लीव है, स्लीव पकड़ के जैसे तैसे करके मुनरो को उसने स्टॉप कर लिया. समहाउ ही स्टॉप मुनरो एंड प्लीडेड एंड बेग्ड, ठीक है, दैट डोंट एंटर द कॉटेज. ओके, शी सेड दैट शी वुड एक्सप्लेन हिम एवरीथिंग लेटर बट नॉट नाउ. तो एफी ने कहा दैट मुनरो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग बट नॉट नाउ, आफ्टरवर्ड्स मैं सब कुछ तुमको बताऊंगा लेकिन बाद में, अभी नहीं. बिकॉज अगर मैंने अभी तुमको सब कुछ बता दिया तो हमारा मैरिड लाइफ मिजरेबल हो जाएगी. इफ़ एफी वुड टेल द ट्रूथ देन देयर मैरिड लाइफ would be miserable. In fact, their whole entire life would be miserable and their relationship will come to an end. ये जो husband wife relationship है मुनरो और एफी में, their husband and wife, right? तो ये जो relationship है, this will come to an end if Effie would tell the truth. That is why Effie said that right now I will not tell you anything. कि अभी मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा. Please forgive me, Munro. I cannot tell you anything right now, but आफ्टर समटाइम्स आई विल डेफिनेटली टेल यू. व्हेन टाइम विल कम आई विल टेल यू. जब समय आएगा मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा. तो मुनरो सडनली बिकेम कन्विंस्ड एंड साइलेंट एट दिस. तो मुनरो जो है वो ठंडा हो गया, ठीक है. मुनरो बिकेम लिटिल कूल एंड ही बिकम कन्विंस्ड. एफी की ये बात सुन के जो है मुनरो थोड़ा सा चुप हो गया और वो कन्विंस्ड हो गया एंड ही बिकेम साइलेंट ऑल्सो एट दिस, ठीक है. अब आगे चलते हम. तो मुनरो जो है वो शांत हो चुका था. ही वॉज लाइक ही पैसिफाइड, ही गॉट पैसिफाइड, वो शांत हो गया. एंड मुनरो टोल्ड हर दैट देयर वॉज नो नीड टू रिवील द सीक्रेट टू हिम. तो मुनरो, ही लव्ड हिज वाइफ वेरी मच, ही लव्ड एफी वेरी मच. सो ही सेड दैट इट्स ओके एफी, नो नीड टू टेल मी एनीथिंग, नो नीड टू रिवील द डार्क सीक्रेट. इफ देर इज एनी सीक्रेट इन योर लाइफ, नो नीड टू टेल मी, मुझे मत बताओ, बट प्लीज प्रॉमिस मी. सो ही मेड हर प्रॉमिस दैट प्लीज़ प्रॉमिस मी दैट यू विल नो मोर हाइड एनी सीक्रेट्स फ्रॉम मी. कि मुझसे तुम कोई सीक्रेट फर्दर जो है, यू नो, फर्दर यू वुड नॉट हाइड एनी सीक्रेट्स फ्रॉम मी. तुम फर्दर कोई सीक्रेट जो है मुझसे नहीं छुपाओगी, मुझे प्रॉमिस करो एफी यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट हाइड एनी सीक्रेट्स फ्रॉम मी. एंड रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सीक्रेट, नो नीड टू टेल मी एनीथिंग, मुझे कुछ मत बताओ. इफ इट इज़ योर सीक्रेट, लेट इट बी योर सीक्रेट. एंड इफ दिस सीक्रेट, इफ रिवीलिंग दिस सीक्रेट कैन डैमेज आवर रिलेशनशिप, अगर इस सीक्रेट को तुमने बता दिया मुझे और इसके वजह से हमारा रिलेशनशिप अगर ख़राब हो गया, तो नो नीड टू टेल मी. ऐसे सीक्रेट का मुझे कोई ज़रूरत नहीं. नो नीड टू टेल मी दैट सीक्रेट. आई लव यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. ओके, यू आर माई वाइफ एंड आई ट्रस्ट यू, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ. आई ट्रस्ट यू. दिस ट्रस्ट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एनी रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप हो, आप घर में फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, यू सी मदर फादर, सन डॉटर, अंकल आंटी, नेफ्यू नीस, फैमिली हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ट्रस्ट ही ना हो तो वो रिलेशनशिप जो है वो टिकेगा नहीं, वो एक्सपायर हो जाएगा. द रिलेशनशिप विल एक्सपायर इफ ट्रस्ट इज नॉट देयर. ओके, सो इफ यू ऑल्सो प्रॉमिस दैट ओके I promise you that I will not hide any secrets from now on. I will not hide any secrets and I thank you that you have trusted me. So she thanked her husband for trusting her. कि तुमने मुझे ट्रस्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू. एंड बोथ ऑफ देम वेंट होम. नाउ एज दे वर गोइंग, जब हस्बैंड और वाइफ दोनों जो है, एवरीथिंग वॉज ओके. नाउ हस्बैंड एंड वाइफ, मुनरो एंड एफी, दे वर गोइंग टुवर्ड्स देयर होम. द येलो फेस, that yellow faced creature was still standing on the window when they passed by. तो वो क्रिएचर, जो येलो फेस वाला जो क्रिएचर है, वो अभी भी विंडो पे उन लोगों को देख रहा था. इट वॉज देयर ऑन द विंडो लुकिंग एट देम. एंड मुनरो केप्ट थिंकिंग व्हाट कनेक्शन वॉज देयर बिटवीन एफी एंड दैट क्रिएचर. ठीक है, तो क्या कनेक्शन हो सकता है एफी और उस येलो फेस्ड क्रिएचर में? व्हाट कनेक्शन कुड बी देयर बिटवीन एफी एंड दैट क्रिएचर, दैट येलो फेस्ड क्रिएचर? दिस इज व्हाट मुनरो केप्ट थिंकिंग. मुनरो ये
सोचता ही रहा, बट ही डिड नॉट आस्क एनीथिंग टू एफी. एफी से उसने कुछ पूछा नहीं इस बारे में, एंड दैट इंसिडेंट गॉट ओवर. नाउ फॉर 2 days आफ्टर द इंसिडेंट थिंग्स वेर गोइंग क्वाइट गुड. तो 2 दिन हो चुका था उस इंसिडेंट को गुजरे 2 दिन हो चुका था. इट वॉज 2 days आफ्टर द इंसिडेंट, तो थिंग्स वेर गोइंग वेरी गुड. बट ऑन द 3rd day एफी ब्रोक हर प्रॉमिस. 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन तीसरे दिन 3rd day एफी ब्रोक हर प्रॉमिस. एफी ने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया. मुंड्रो हैड गॉन टू टाउन. तो कैसे हुआ ब्रेक देखिए आप. मुंड्रो हैड गॉन टू टाउन फॉर सम बिजनेस वर्क, बट वो जल्दी जल्दी आ गया. तो एफी ने सोचा कि मुंड्रो तो टाउन गया है, मुंड्रो वेंट टू द टाउन, सो इट वुड टेक टाइम. सो व्हाट his wife did was that his wife was not at home. Now where his wife went we will learn later, but his wife was not at home. And how was this discovered? Munro had gone to the town, as I told you, and he returned very early. वो जल्दी जल्दी वापस आ गया, and upon returning he did not find his wife at home. जब वो लौट के जब वो अपने घर गया तो देखा कि एफी वहाँ पे नहीं है. एफी इज नॉट इनसाइड द हाउस. तो मुंड्रो को शक हुआ, और मुंड्रो इमीडिएटली अंडरस्टूड यस एफी हैड गॉन टू द कॉटेज. एफी जो है उस कॉटेज के अंदर चली गई है. ही बिकेम एक्सट्रीमली एंग्री एंड इमीडिएटली वेंट टू द कॉटेज. वो बिल्कुल गुस्सा हो गया और एक्सट्रीमली एंग्री. मुंड्रो बिकेम एक्सट्रीमली एंग्री एंड इमीडिएटली ही फेल दैट एफी वॉज इनसाइड दैट कॉटेज ओनली. एफी का और कहाँ जाएगी एफी? वेयर वुड एफी गो? एल्सवेयर तो कोई जगह नहीं है. तो दैट कॉटेज इज ओनली द प्लेस. सो ही रैन एंड वेंट टू द cottage. Okay, he immediately went to the cottage, but the house was empty. घर जो है वो पूरा खाली था. But suddenly, Munro's his eyes fell on the mantelpiece where he saw the photo of his wife. अब main बात ये है कि when he went inside the cottage, he was looking around. There were furniture था, कुर्सी टेबल ये सब था, पिक्चर्स था आसपास. लेकिन वहाँ पे एक ऐसा फोटो था जिसे देख के Munro was shocked after he saw a particular photo, and that photo was of his wife Effie. And Munro was so shocked. This made Munro utterly shocked that how come my wife's photo is in this cottage. एफ़ी ने मुझे 2 दिन पहले एफ़ी ने खुद 2-3 दिन पहले एफ़ी ने मुझे खुद बताया कि शी डज नॉट नो एनीबडी इनसाइड द हाउस, इनसाइड द कॉटेज. हाउ कम माई वाइफ्स फोटो इज इनसाइड दिस कॉटेज? This is utterly shocking. So later in the evening he asked his wife about the photo. So obviously he is the husband, he has the right to ask. So in the evening he asked his wife that Effie, I saw your photo in the cottage. What is the matter? I'm still asking you, do you know those people in the cottage? But Effie did not reply anything. When Effie did not reply, now he became extremely angry actually, because Effie did not reply anything. When Effie did not reply, he left the house telling her that unless she would tell him the whole truth, there cannot be any relation between them. अब जो है एक फाइनल डिसीजन ले लिया मुंड्रो ने. मुंड्रो हैड टेकन अ फाइनल डिसीजन नाउ. ही टोल्ड एफी, ही वार्नड एफी एक्चुअली, ही डिड नॉट टेल एफी, ही वार्नड एफी दैट एफी, जब तक तुम मुझे सब सच नहीं बताओगी, तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिलेशन नहीं है. देयर कैन नॉट बी एनी रिलेशन बिटवीन यू एंड मी अनलेस एंड अनटिल यू टेल मी द एंटायर, द होल ट्रूथ. देयर कैनॉट बी एनी रिलेशन विथ मी. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू फ्रॉम टुडे. मैं तुमसे बात नहीं करूँगा आज के बाद जब तक तुम मुझे पूरा सच नहीं बताओगी. कह के सेइंग दिस ही लेफ्ट द हाउस. वो घर छोड़ के चला आया. एंड स्ट्रेट ही केम टू शर्लॉक होम्स फॉर एडवाइस. तो अभी जहाँ प्रेजेंट वो बैठा है, एक्चुअली ये पूरा कहानी, दिस होल स्टोरी, मुंड्रो इज एक्चुअली नरेटिंग द होल स्टोरी टू शर्लॉक होम्स. ये पूरा कहानी मुंड्रो जो है वो शर्लॉक होम्स को बता रहा है. तो अब हम प्रेजेंट सिचुएशन में आते हैं. लेट्स कम टू द प्रेजेंट सिचुएशन वेयर मुंड्रो इज सिटिंग इन द हाउस ऑफ शर्लॉक होम्स. शर्लॉक होम्स इज देयर. Sherlock Holmes, the friend of Sherlock Holmes, Dr. Watson is there, and there Munro is also there narrating the story. So he came to Sherlock Holmes for advice, and since he loved her very much, since then he had no contact with his wife. तो तब से जो है उसका कोई उसके वाइफ के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है. he is not talking to his wife, he is away from his wife, and he loved his wife very much. He loves his wife very much. That is why he came to Sherlock Holmes for advice. वो Sherlock Holmes के पास एडवाइस के लिए क्यों आया? Because वो अपनी बीवी से, एफी से बहुत प्यार करता है मुंड्रो. दैट इज वाई तो ही केम दैट मुझे इसका सोल्यूशन ढूंढना है. आई वांट अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. नाउ अब हम लोग देखते हैं कि रिप्लाई क्या आता है शर्लॉक होम्स की तरफ से. तो शर्लॉक होम्स आस्क सम क्वेश्चंस टू मुंड्रो. तो शर्लॉक होम्स कुछ क्वेश्चंस कर रहा है मुंड्रो को. अब देखिए क्वेश्चंस क्या क्या है. शर्लॉक होम्स ने पहला क्वेश्चन पूछा
कि टेल मी समथिंग अबाउट द फेस ऑन द विंडो। तो मुनरो ने जवाब दिया कि इट वॉज ऑफ अननेचुरल कलर एंड लुक्ड फिक्स्ड लाइक अ स्टैचू। तो वो फेस जो है वो येलो कलर का है, विच इज़ वेरी अननेचुरल। इट इज़ ऑफ ए येलो कलर एंड इट इज़ वेरी अननेचुरल एंड द फेस डिड नॉट हैव एनी एक्सप्रेशन। फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, देयर इज़ नो एक्सप्रेशन ऑन द फेस, इट इज़ लाइक अ स्टैचू जस्ट स्टेयरिंग फ्रॉम द विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्लॉक आस्क्स के हाउ लॉन्ग इज इट सिंस योर वाइफ आस्क्स फॉर द मनी, कि 100 पाउंड्स तुम्हारे वाइफ ने जब मांगा था कितना कितना दिन हो चुका है, हाउ 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 लॉन्ग इज इट सिंस योर वाइफ आस्क्स फॉर द मनी। तो कहा 2 महीना हो चुका है, इट इज़ नियरली 2 months माई वाइफ हैड आस्क्ड फॉर द मनी। हैव यू सीन द फोटोग्राफ ऑफ हर फर्स्ट हस्बैंड, शर्लॉक होम्स ने पूछा कि क्या तुमने एफी का जो फर्स्ट हस्बैंड है जॉन हीब्रन, इफ़ यू रिमेंबर जॉन हीब्रन जो है एफीज फर्स्ट हस्बैंड, डिड यू सी हिज फोटो, क्या तुमने इसका फोटो देखा। तो मुनरो ने कहा नहीं, आई डिड नॉट सी हिज फोटो बिकॉज अ ह्यूज फायर ब्रोक आउट एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स वर डिस्ट्रॉयड। जितना पेपर्स था वो सब डिस्ट्रॉय हो चुका था बिकॉज आग लग गया था उस घर में। दैट हाउस कॉट अ बिग फायर एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑल द फोटोग्राफ्स वर डिस्ट्रॉयड, बट एफी हैड केप्ट अ डुप्लीकेट ऑफ हिज डेथ सर्टिफिकेट एंड दैट आई हैव सीन। कि एफी ने जो है जॉन हिब्रन का एक डेथ सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट अपने पास रखा था, वो मैंने देखा है, दैट आई हैव सीन। Sherlock Holmes said, okay, that's fine. Next question is, did you meet anyone who knew Effie in America? क्या तुम ऐसे किसी को जानते हो जो एफी को जानता है जब वो अमेरिका में थी? When Effie was in America, do you know anybody? Do you know a common friend जो एफी को पहचानती है? Who knows Effie when she was in America? Munro said, no, मैं ऐसे किसी को नहीं पहचानता. I don't know anybody who knows Effie actually when she was in America. Now Sherlock Holmes thanked Munro and told him that Mr. Munro, you go back to Norbury. तुम अपने घर नॉर्बरी चले जाओ, but do not enter the cottage even if he found there were people inside. कि तुम कॉटेज के अंदर नहीं घुसोगे, कॉटेज के अंदर अगर कोई होगा भी, इफ देयर वुड बी पीपल इनसाइड द कॉटेज, अगर इंसान भी होंगे कॉटेज के अंदर, तुम मत घुसना, दिमाग ठंडा रखना, कीप योर हेड कूल, डोंट एंटर द कॉटेज, डोंट बी एंग्री, बट इमीडिएटली यू डायरेक्टली वायर, मुझे टेलीग्राम भेजो, या तो मुझे भेजो या तो वाटसन को भेजो, लेकिन मुझे इमीडिएटली एक टेलीग्राम भेजो इफ़ यू सी दैट द कॉटेज वॉज फिल्ड विथ पीपल। अगर तुमको लगा कि कॉटेज के अंदर लोग हैं, ओके, देन यू इमीडिएटली सेंड मी अ टेलीग्राम, और you can send the telegram to Watson, either to Watson or to me, but don't enter the cottage, please keep your head cool. So Munro agreed and Watson asked if Sherlock Holmes had any theory. तो Munro he went now. Munro जो है वो चला गया. He was going to return back to Norbury as advised by Sherlock Holmes. जैसे Sherlock Holmes ने एडवाइस किया कि मुनरो तुम आप जो है आप नॉर्बरी अपने घर चले जाइए, लेकिन कॉटेज के अंदर एंटर मत कीजिएगा, अगर कोई दिखा कॉटेज के अंदर तो हमें एक मैसेज सेंड कर दीजिए. Anyways, so Munro left Sherlock Holmes' place. Now there was only Sherlock Holmes and Watson inside the house. Now Watson ने Sherlock Holmes से पूछा. Watson asked Sherlock Holmes that do you have any theory about the case? Now Sherlock Holmes, मैं आप लोगों को बता दूं, let me tell all of you, Sherlock Holmes had already solved the case. Sherlock Holmes ने केस को सॉल्व कर लिया था. See, Sherlock Holmes now presented a theory of his own. Sherlock Holmes ने अपना एक थ्योरी प्रेजेंट किया. He had half solved the case, but he needed more proofs. देखिए, केस सॉल्व, शर्लॉक होम्स ने ऑलरेडी केस को सॉल्व कर लिया था, लेकिन प्रूफ नहीं था उसके पास, सिर्फ थ्योरी था, एक्सप्लेनेशन था, बट एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट करने के लिए उसके पास जो है प्रूफ या एविडेंस नहीं था. ऑलराइट, एंड उस एविडेंस, इन ऑर्डर टू गेट दैट एविडेंस ही नीडेड टू गो टू नॉर्बरी. तो जब मुंड्रो से मैसेज आएगा, ओनली देन दे कैन गो टू नॉर्बरी, तभी तो वो लोग नॉर्बरी जा सकते और जो है एविडेंस प्रूफ कलेक्ट कर सकते, बट नॉट बिफोर दैट. तो नाउ Sherlock Holmes explains Dr. Watson his own theory. तो अपना थ्योरी प्रेजेंट कर रहा है, देखिए, और ये थ्योरी बिल्कुल करेक्ट है. नंबर 1 पॉइंट. नाउ दिस इज द थ्योरी ऑफ Sherlock Holmes. आई प्रेजेंटेड इन नंबर्स फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. मैंने नंबर्स में प्रेजेंट किया है. टोटल 13 पॉइंट्स है. देयर आर 13 पॉइंट्स टोटल मैंने कवर किया है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में बहुत आसानी से समझ में आ जाए और आप लोग एग्जाम में लिख सके बहुत आसानी से. यू कैन फाइंड इट वेरी ईजी. ओके, सो नंबर 1 थ्योरी, एफी वॉज मैरिड इन अमेरिका. दिस इज Sherlock Holmes थ्योरी. को ये Sherlock Holmes का थ्योरी है कि एफी जो है उसका शादी अमेरिका में हो गई. हर हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टेड सम डिजीज, उसका हस्बैंड को कुछ डिजीज हुआ. नाउ शी वेंट अवे फ्रॉम हर हस्बैंड टू इंग्लैंड. अब हस्बैंड एक्चुअली, जब हस्बैंड
when her husband contracted some disease, she went away from her husband, then she changed her name and started to live a fresh life. इसका मतलब हस्बैंड, उसका फर्स्ट हस्बैंड का डेथ नहीं हुआ था. अकॉर्डिंग टू शर्लॉक होम्स थ्योरी, हर फर्स्ट हस्बैंड डिड नॉट डाई. रादर जब फर्स्ट हस्बैंड बीमार पड़ा तो एफी फर्स्ट हस्बैंड को छोड़ के वो इंग्लैंड चली आई, अपना नाम बदल दिया और एक नई जिंदगी वो शुरू करने लगा. अब क्यों, ये तो हमें भी नहीं पता, दिस तो वी डोंट नो. ठीक है. नंबर 4, शी वॉज मैरिड टू मुनरो फॉर 3 years. तो 3 साल हो चुका है. मुनरो इज हर सेकेंड हस्बैंड एंड दे हैड बीन मैरिड फॉर 3 years. 3 साल हो चुके हैं उन दोनों का शादी को. एंड शी फाउंड हर लाइफ वेरी सिक्योर्ड विथ मुनरो. तो मुनरो के साथ जो है बहुत खुशी खुशी एफी अपना जिंदगी बिता रही थी. एफी वॉज पासिंग हर डेज वेरी ब्यूटिफुली विथ मुनरो. दे वर हैप्पी कपल. ओके, दोनों जो है हैप्पी मैरिड कपल थे. Point number 5, she also provided a false death certificate to Munro. Okay, that death certificate of John Hebron, that is a fake, false death certificate, and that Munro had seen. Maybe her first husband had never died according to Holmes. So Holmes ने कहा कि शायद उसका फर्स्ट हस्बैंड मरा ही नहीं और झूठ मूठ का किसी और का डेथ सर्टिफिकेट दिखा के जो है उसने मुनरो को थोड़ा फूल बनाया. ओके, ही मेड मुनरो अ लिटिल फूल, शी मेड मुनरो अ लिटिल फूल by providing someone else's death certificate. That means उसका first husband, Effie's first husband's name may not be John Hebron. है ना? Right or wrong? Students, Effie's first husband's name is John Hebron. But John Hebron's death certificate could be a false death certificate. It could be of somebody else's death certificate. किसी और का डेथ सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट कॉपी उसने दिखा दिया होगा. उसका हस्बैंड का नाम जॉन हिब्रन नहीं भी हो सकता है. Alright. Now why she was doing all this? This cannot be proved by Sherlock Holmes right now. For this he needs to go to Norbury in that cottage. और वो जाएगा एक्चुअली. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 3 we will see that वो लोग जाते हैं वहाँ पे. Anyways, point number 6. Her address and identity must have either been discovered by Munro or some criminal-minded woman was blackmailing her. तो या तो एफी की एड्रेस और एफी के आइडेंटिटी को मुनरो ने ढूंढ निकाला था, was discovered by Munro. Effie's address and identity must have been discovered by Munro, or there was some criminal-minded woman who was blackmailing her. There was some kind of a dark secret. There was some kind of a dark secret in the life of Effie, and that woman was blackmailing Effie and warned Effie that I will expose your secret if you do not provide me these things. होता है ना कि तुम मुझे पैसा दो तो मैं तुम्हारा सीक्रेट को रिवील नहीं करूंगा. आई विल नॉट रिवील योर सीक्रेट, यू प्रोवाइड मी मनी. यही हुआ इस केस में. हम देखते हैं आगे. पॉइंट नंबर 7. दिस वुमेन मस्ट हैव रिटन एफी अ लेटर एंड थ्रेटन टू एक्सपोज हर. देखिए इस क्रिमिनल माइंडेड वुमेन, अब ये वुमेन कौन है, हु दिस वुमेन इज, वी डू नॉट नो. दिस इज द थ्योरी ऑफ शर्लॉक होम्स. ये जस्ट एक कैजुअल एक्सप्लेनेशन है फ्रॉम शर्लॉक होम्स. वी डू नॉट नो हु द वुमन इज. नाउ according to Sherlock Holmes, this woman must have written Effie a letter and threatened to expose her. कि ये जो लेडी है इसने एफी को एक चिट्ठी लिखा होगा और कहा होगा मैं तुम्हारा सीक्रेट रिवील कर दूंगा अगर तुमने मुझे 100 pounds नहीं दिया. तो द ब्लैकमेलर्स डिमांडेड, पॉइंट नंबर 8, द ब्लैकमेलर्स डिमांडेड 100 pounds टू कीप देयर माउथ शट. ओके, टू कीप देयर माउथ शट. एफी हैड पेड द मनी. आपको पता है एफी हैड टेकन 100 pounds फ्रॉम हर हस्बैंड. दैट 100 pounds she might have given to the blackmailers. देखिए कनेक्शन कैसे जुड़ रहा है, how the connection is established now. All right, तो the blackmailers are now demanding money from Effie and Effie paid them 100 pounds. Effie ने अपने हस्बैंड से 100 pounds लेके इन blackmailers को दे दिया. But still the blackmailers came to the cottage making Effie more nervous. लेकिन पैसा लेने के बाद भी even after taking the 100 pounds the blackmailers still came to the cottage. And they again threatened Effie that they will expose her. पैसे लेने के बावजूद वो ब्लैकमेलर्स फिर से उस कॉटेज में आए, वो उस कॉटेज में आए और एफी को और नर्वस कर दिया और पैसे मांगने लगे या ऐसा कुछ हुआ होगा. समथिंग सिमिलर माइट हैव बीन गोइंग ऑन. ठीक है.
And that is why Effie does not tell the truth when Munro catches her red-handed coming out of the cottage. Actually, Effie उस cottage से निकली क्यों निकली? पैसे देने के लिए, या पैसे देने के लिए, या उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए. आई इधर इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट द ब्लैकमेलर्स दैट प्लीज प्लीज डोंट टेल द सीक्रेट्स, रिवील द सीक्रेट टू माई हस्बैंड. If he might have been there to request the blackmailers not to expose her. Right, and right at that time, Munro catches Effie coming out of the cottage. Now, Effie could not tell the truth. Right? Effie could not tell the truth. Effie तो सच नहीं बता सकती थी. Alright, I hope you have understood till point number 10. Okay. So, Effie does not tell the truth, and when Munro catches her red-handed coming out of the cottage. Okay. So now point number 11. One night, Effie slips out of her house when Munro was sleeping. तो एक रात को क्या हुआ कि Effie जो है वो रात को बहुत रात को ओके मुनरो वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम एंड एफी सडनली क्या हुआ, एफी कपड़े पहन के शी वोर अ गुड ड्रेस एंड शी गोज़ आउट ऑफ द हाउस. ओके, वो घर से निकल जाती है रात को बाहर. तो एक्चुअली मुनरो उस वक्त सो नहीं रहा था. मुनरो वॉज नॉट स्लीपिंग, एक्चुअली ही वॉज हाफ अवेक. वो आधा सोया हुआ था, आधा जगा हुआ था. ही वॉज हाफ अस्लीप. So he pretended to sleep. He did not wake up. He pretended to sleep just to see what his wife was doing at such a late hour. इतनी रात को एफी क्या कर रही है ये देखने के लिए मुनरो बस एक्टिंग कर रहा था, सोने का एक्टिंग कर रहा था. ही वॉज प्रिटेंडिंग टू स्लीप. ओके, तो क्या होता है कि एफी जो है नए कपड़े पहन के एफी घर से निकल जाती है और मुनरो सर पकड़ के बैठ जाता है कि एट सच अ लेट आवर, इतनी रात को मेरी वाइफ कहाँ गई, वेयर डिड शी गो. ओके, ये आप लोगों ने ऑलरेडी देखा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये बताया था, ठीक है ना. तो अब क्या होता है, शी गोज टू द कॉटेज. एक्चुअली ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी इज बाय शर्लॉक होम्स, ठीक है ना. ये पूरा थ्योरी शर्लॉक होम्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया. तो एक्चुअली शर्लॉक होम्स के कहता है कि उस रात को जब एफी अपने घर से बाहर निकली थी रात को, एंड मुनरो वाज स्लीपिंग एट दैट टाइम, एफी चुपचाप निकल जाती है बाहर. ओके, एंड शी एक्चुअली कहाँ जाती है, शी गोज टू द कॉटेज. क्यों जाती है कॉटेज? फिर से उन लोगों को रिक्वेस्ट करने के लिए, टू एंड प्लीज देम टू गो अवे फ्रॉम द कॉटेज एंड लेट हर लिव इन पीस विथ हर हस्बैंड मुनरो. वो एक्चुअली एफी जो है उस रात को घर से निकल के बाहर जाती है. कहाँ जाती है? उस कॉटेज में जाती है. शी गोज टू द कॉटेज टू रिक्वेस्ट देम वंस अगेन दैट प्लीज गो अवे, लीव मी इन पीस विथ माई हस्बैंड, अदरवाइज माई रिलेशन विथ माई हस्बैंड विल गेट स्पॉइल्ड, विल गेट डैमेज्ड. ओके ना, डैमेज हो जाएगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा मेरे साथ, मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप. तो तुम लोगों को पैसा मिल गया ऑलरेडी, आई हैव गिवन यू 100 pounds, प्लीज़ गो अवे, प्लीज़ गो अवे. ओके, तो एफी जो है एक्चुअली, एफी लौट के क्या कहते हैं अपने हस्बैंड से, एफी व्हेन एफी रिटर्न्स शी टेल्स हर हस्बैंड दैट नहीं, मैं तो थोड़ा हवा खाने के लिए बाहर गया था, आई जस्ट वेंट आउट टू हैव सम फ्रेश एयर. बट एक्चुअली शी गोज टू द कॉटेज टू रिक्वेस्ट द ब्लैकमेलर्स टू गो अवे. बट फिर से देखिए, द ब्लैकमेलर्स डिड नॉट लिसन टू हर. ओके, सो इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट आफ्टर गिविंग देम मनी, पैसे देने के बावजूद, even after requesting them again and again, they did not listen to Effie. So Effie again, next morning, Effie again she went in the morning. It was then that Munro saw her coming out of the cottage. इसी वक्त जो है मुनरो ने उसको, एफी को कॉटेज से बाहर निकलते हुए देख लिया और मुनरो को जो है शक हुआ. ही बिकेम वेरी एंग्री. मुनरो सस्पेक्टेड दैट हाउ कम एफी इज इन दिस कॉटेज, and she scolded Effie, and at that point of time only Effie promised that okay chalo, I will not hide anything from you further. But you see, the intention of Effie was not bad. According to Sherlock Holmes's theory, the intention of Effie was not bad. Though she promised her husband that she would never go there again, तो Effie ने promise किया कि ठीक है मैं इस cottage में फिर से नहीं आऊँगा, I will not come to the cottage anymore. But then she breaks her promise again and she goes to the cottage taking her own photo. This time she takes her own photo. So again, third time she goes to the cottage, again requesting them that please go away and leave me alone and let me live in peace with my husband. ठीक है, तो again फिर से वो जाती है, लेकिन इस बार वो अपना एक फ़ोटो लेके जाती है. This time Effie takes a photo with her. Now why does she take a photo? Actually it was her own photo. अपनी खुद की एक फ़ोटोग्राफ लेके वो उस कॉटेज में फिर से जाती है. लेकिन क्यों फ़ोटो लेके क्यों जाती है? Why does she take a photo?
This is a question mark. Now here is the answer. Answer is like the theory of Sherlock Holmes. She took her photo because the blackmailers might have demanded from her. तो Sherlock Holmes ये कह रहा है वॉटसन को कि देखो वॉटसन, Effie took her photo not because she wanted to take her photo but because the blackmailers might have demanded from her. blackmailers ने, ऐसा हुआ होगा कि blackmailers ने ज़बरदस्ती एफी से अपना एक फ़ोटो मांगा होगा, डिमांड किया होगा कि तुम एक फ़ोटो अपने साथ लेकर आओ, नहीं तो हम तुम्हारा भांडा फोड़ कर देंगे, वी विल रिवील योर सीक्रेट. तो एफी डर गई, एफी वॉज फ्राइटेंड, दैट इज़ वाई शी टुक हर ओन फोटो एज पर द ब्लैकमेलर्स डिमांड. ठीक है, ब्लैकमेलर के डिमांड पे एफी अपना फोटो लेके गई, बिकॉज एफी वॉज वेरी फ्राइटेंड दैट इफ द ट्रूथ कम्स आउट देन मुनरो माइट गिव डिवोर्स टू हर. कि अगर सच्चाई पता चल गया, अब सच्चाई क्या है ये हमें नहीं पता, ये शर्लॉक होम्स को भी नहीं पता. शर्लॉक होम्स हैज़ गिवन अ प्रोविजनल टेम्पररी थ्योरी. इवन शर्लॉक होम्स ऑल्सो डज नॉट नो द एंटायर ट्रूथ, बिकॉज जब तक शर्लॉक होम्स नॉर्बरी में नहीं जाएगा, अनलेस एंड अनटिल शर्लॉक होम्स गोज टू नॉर्बरी एंड गेट्स इनसाइड द कॉटेज, जब तक शर्लॉक होम्स कॉटेज के अंदर नहीं जाएगा तब तक तो शर्लॉक होम्स को पता नहीं चलेगा ये चीज़. ठीक है ना. तो शर्लॉक होम्स का ये प्रोविजनल थ्योरी है, टेम्पररी थ्योरी है एक. ठीक है. मुनरो से बात करने के बाद, आफ्टर टॉकिंग टू मुनरो, शर्लॉक होम्स ने एक थ्योरी बना लिया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, दिस थिंग्स माइट हैव हैपेंड. सो ब्लैकमेलर्स के डिमांड पे एफी जो है फ़ोटो लेके गई उस कॉटेज में, और वही फ़ोटो किसने देख लिया? मुनरो सॉ दैट फोटो इनसाइड द कॉटेज, एंड मुनरो को शक हो गया कि मेरे वाइफ का कुछ अफेयर है with the family members of this cottage, that my wife might have some affair or might have some secrets which my wife is not sharing with me. एफी मेरे साथ शेयर नहीं कर रही है, ऐसा कुछ अफेयर होगा, कुछ ऐसा शक हुआ होगा मुनरो को. दैट इज़ वाई मुनरो गोज टू शर्लॉक होम्स टू टेक एडवाइस. तो यही है ये कहानी. ये जो 13 पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 1 to 13, ये पॉइंट्स जो है आप अच्छे से लिख लीजिए. बिल्कुल जो है आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन, यू नो, आफ्टर लिसनिंग टू द एक्सप्लेनेशन प्लीज़ नोट दिस पॉइंट्स इनसाइड एंड रिमेंबर दिस पॉइंट. दीज आर द थ्योरीज ऑफ शर्लॉक होम्स. तो एग्जाम में ऐसा आ सकता है, व्हाट इज़ द प्रोविजनल थ्योरी ऑफ शर्लॉक होम्स. तो आप ये लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 to पॉइंट नंबर 13. मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है. आई रोट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. यू कैन राइट इन गुड लैंग्वेज, यू कैन कंपोज सेंटेंसेस इन गुड लैंग्वेज. ठीक है ना. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी टिल नाउ. पार्ट 2 का वीडियो मैं यही एंड करूंगा. आई विल एंड पार्ट 2 वीडियो हियर, बिकॉज पार्ट 3 एंड द फाइनल पार्ट आई विल ब्रिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड part 3 and will be the final part, and there it will be revealed that what the actual problem is and how Sherlock Holmes will find the solution. Remember, the main question is not there are 2 questions that needs to be covered. 2 क्वेश्चन हैं जो कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक, Effie's relation with the cottage members. Okay, Effie's relation with the cottage people. Effie's relation with the cottage people. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, Effie's relation with the cottage people. And number 2 point is the yellow faced creature. वो येलो फेस वाला क्रिएचर जो, ये 2 पॉइंट हम लोगों को कवर करना है. वी हैव टू कवर दिस 2 पॉइंट्स, एंड दैट शर्लॉक होम्स ऑल्सो डज नॉट नो. जब तक शर्लॉक होम्स, until and unless Sherlock Holmes visits the cottage, शर्लॉक होम्स को पता नहीं चलेगा. तो ये 2 पॉइंट है. दीज आर द 2 क्वेश्चंस for which the solution will be given in the final part of the story. तो कहानी में यहीं पे एंड करना चाहूँगा. अगर आप लोगों को if you find any doubt or anything, you can comment me in the comment section. So that's all from me for today. Thank you so much for watching the video. Please subscribe to the channel, like and share the video with your friends. That's all, with love from Omnigyan, and all the best to all of you.